let's see some of the function associated with the data frame. We will be seeing some of the function that is associated with the data frame, and already we have discussed some of them. See, we have already learned how to create 2D dictionaries, how to create data frame with the help of 2D dictionary, and how to create database, how to create data frame with help of 2D dictionary having value as a dictionary objects. Okay. We have also seen how to create a data frame with the help of 2D dictionaries in which value is as a list of dictionaries and with the help of all others. And we have also learned how to use the transpose, how to transpose the data frame. We have also learned how to retrieve the number of rows in data frame. Okay. Then we have also learned how to count NaN value. NaN means not a number. Okay, NaN values. Okay, and then after we have also learned, and for that for in order to count the NaN in non-NaN values, we have the function that is called count. Okay, that is called count. काउंट फंक्शन का यूज करके नॉन NaN वैल्यूज को हम पता कर सकते हैं कि हमारे डेटा फ्रेम में कहाँ कहाँ नॉन NaN वैल्यू है. ठीक है, you can see if you are saying if you are viewing my data frame. Okay, here you can see the NaN values are present here. Okay, you can see it is present in the name. Okay, NaN value is present here. You can see NaN value is present here. Okay, you can see NaN value is present here. NaN means not a number or not a blank. You can simply say a blank. ठीक है, हम लोग उसको blank कर सकते हैं. ठीक है, तो हम non NaN. Okay, we can find out the count the non NaN values. Okay, we can find non NaN नहीं non NaN. Okay, तो यहाँ देखो हम लोग देखें कि उसके लिए कौन सा फंक्शन है. उसके लिए फंक्शन यहाँ पर यूज हो रहा है, वो है दैट इज काउंट. ठीक है, काउंट में अगर हम 0 अगर लगा दिए तो इसका मतलब है कि पूरे डेटा फ्रेम में जहाँ जहाँ नॉन NaN वैल्यू होंगे वो बताएगा. ठीक है, कॉलम वाइज बताएगा. ठीक है, अगर मान लो अगर हम कॉलम 1 का पता करना चाहते हैं तो 0 के जगह पर हम वहां पर डालेंगे कॉलम 1, कॉलम 1 डाल देंगे. ठीक है, अगर सपोज करो कि अगर मान लो हमें पता करना है कॉलम 2 का, df डॉट काउंट 2 लिखेंगे. जहाँ यहाँ पर जो df लिखा हुआ है, यहाँ पर हम काउंट 2 जो लिखा हुआ है, काउंट 0 जो लिखा हुआ है, यहाँ पर हम काउंट 1 कर देंगे. कॉलम 1 का काउंट करना है तो काउंट 1, कॉलम 2 का काउंट करना है तो काउंट डॉट 2 लिख देंगे. वहां पर डॉट नहीं, सॉरी, ब्रैकेट में. ठीक है, और लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस थिंग्स. लोग आगे देखेंगे. एक्सेसिंग कॉलम्स इन डेटा फ्रेम. ओके, हाउ टू एक्सेस द कॉलम in the data frame. Okay, so here I hope we have also done this. We access the column in data frame with the help of the column name. Okay, we access with by the help of column name. हम column name के सहारे से डेटा फ्रेम से हम कॉलम को एक्सेस करते हैं. ठीक है, मान लो हमारा डेटा फ्रेम, you can see here. Okay, we are accessing here. You can see, यहाँ पर देख सकते हैं कि हम डेटा फ्रेम से हम रोल कॉलम को एक्सेस कर रहे हैं और यहाँ पर हम रोल और क्लास दोनों को एक्सेस कर रहे हैं. जब मोर देन 1 कॉलम होगा, वी हैव टू टेक केयर दैट व्हेन देयर इज मोर देन 1 कॉलम, देन वी राइट इट like this. Okay, we write it like this. We define roll, then comma, and then again we write the name of other column. Okay, and then we provide 2 square brackets. We have to take care of these things. Okay, so this is how we can access the
This is how we can access the column from a data frame. I hope it is clear. और आगे हम लोग बढ़ेंगे, ये सारी चीजें पढ़ाई हुई हैं। यहाँ पर LOC means accessing a subset from data frame using row column name with the help of LOC. Accessing a subset from data frame using row column name by the help of LOC. ठीक है, LOC का यूज करके हम लोग सबसेट, अभी देखो सबसेट को समझने के लिए हम यहाँ पर हमारा सबसेट, मान लो हमारा ये डेटा फ्रेम है, अभी यहाँ पर इसको समझना जरूरी है। देखो मान लो ये हमारा डेटा फ्रेम है, दिस इज माय डेटा फ्रेम, दिस इज माय डेटा फ्रेम, इट्स नेम इज DF। ये हमारा डेटा फ्रेम है, इसका नाम DF है। तो इसमें से हम सबसेट ऑफ डेटा निकाल सकते हैं LOC के हेल्प से। हमारा सबसेट क्या होगा, देखो मान लो अगर हम देखते हैं तो हमारा एक सबसेट हमारा ये भी हो सकता है, हमारा एक सबसेट कोई कॉलम भी हो सकता है, एक कॉलम हो सकता है। दिस मे बी अ सबसेट which we want to retrieve from this data frame. This may be our subset, okay, or this may be our subset, or this may be our subset, or this may be a subset of data, right? This may be the subset of data, और वो भी नहीं तो हमारा ये भी हमारा एक सबसेट हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। So this is extracting the subset of data from data frame with the help of LOC, ठीक है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे, तो ये भी पहले पढ़ा चुके हैं और अब आज रिवीजन में ये बता रहे हैं कैसे हम LOC का यूज करते हैं। We have got the 4 attributes you can see. SR, that is a starting row, then it is end row, then there is comma. Mind it, यहाँ पर ध्यान देना है, starting row, semicolon, end row, comma, starting column, colon, end column, इसका ध्यान देना है, ठीक है। देखो कॉमा कहाँ है, एक कॉमा है, मतलब रो के डिस्क्रिप्शन के बाद कॉमा है, ठीक है। अब रो के डिस्क्रिप्शन में कोलोन आया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अब इसको देखेंगे, लेट्स सी यहाँ पर क्या किया हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर हमारे इसमें से, नाउ सपोज वी वांट टू एक्सट्रैक्ट अ सिंगल रो, यहाँ पर हम एक सिंगल रो 101 को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 101 को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, व्हाट आई हैव रिटन हियर, यहाँ पर हम लिखे हैं, क्या लिखे हैं आप देखिए, df.loc, okay, what I have written df.loc, then I have given a square bracket। उसके बाद अगर आप यहाँ देखोगे तो सबसे पहले क्या होता है, स्टार्टिंग रो हमारा क्या है 101, 101, ओके। देन 101 के बाद हमारा कुछ भी नहीं है, ठीक है, पूरे, और उसके बाद कुछ भी नहीं है, कॉमा दे दिए, ठीक है। अब कॉलम कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सेमीकोलन प्रोवाइड। दिस इज हाउ वी हैव सेलेक्टेड अ वन रो, ठीक है, दिस इज हाउ वी हैव सेलेक्टेड वन रो, ठीक है। अब इसकी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसका प्रैक्टिकल भी करके भी दिखा देंगे। अगर हम आगे चलते हैं, ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हम क्या किए, 2 रो को सेलेक्ट किए, ठीक है। क्या हम लिखे हैं यहाँ पर, वेट हियर, सी हियर, यहाँ पर क्या किया हुआ है, you can see this example at this point, df.loc 101 103 means हम लोग यहाँ पर we are going to select these data, okay, 101 and 103, we are going to select these two कॉलम के जगह पर, कॉलम हम यहाँ पर कोई स्पेसिफिक कॉलम सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हम सेमीकोलन लगा देंगे, ठीक है। अब फिर इसके बाद आगे बढ़ें, अगर हम आगे चलते हैं
तो वहां पर रो भी सिलेक्ट करेंगे और कॉलम भी सिलेक्ट करेंगे। आगे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब मान लो कोई पार्टिकुलर कॉलम सेलेक्ट करना है। ठीक है, यू कैन सी हियर when we need to select the particular column, wait 1 minute, when we need to select the particular column, okay, then we have written the name of column here, और रो के जगह पर यहाँ पर हम सीधे सेमीकोलन और कॉमा दे दिए हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो फिर यहाँ पर जब हम देखते हैं तो देखो यहाँ पर क्या किया हुआ है, df.loc। यहाँ पर देखो स्टार्टिंग रो और एंड रो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक कॉलम का नाम है, यहाँ पर हम दे दिए रोल लिख दिए। ठीक है, तो थोड़ा और अगर हम क्लियर करके समझाएं तो df हमारा डेटा फ्रेम का नाम, loc, देन ओके। अब यहाँ पर स्टार्ट रो का डिस्क्रिप्शन कुछ भी नहीं है, कोलोन दे दिए, कॉमा। ठीक है, माइंड इट ऑलवेज देयर इज कॉमा। ये कॉमा कहाँ होता है, स्टार्टिंग रो, सेमीकोलन, एंड रो, देन वी गिव द कॉमा। ठीक है, मींस व्हाट हियर वी हैव डन, हियर वी हैव गिवन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रो रेंजेस, ओके, आफ्टर रो। सो अभी तो हमारा यहाँ पर रो का रेंज कुछ है नहीं, इसलिए हम यहाँ पर क्या दे दिए, सेमीकोलन दे दिए, और हमें क्या डिस्प्ले करना है, क्या निकालना है, रोल को एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, हम रोल लिख दिए, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक है, दिस इज हाउ वी विल एक्सट्रैक्ट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। और हम आगे चलें। ठीक है, आगे चलें, एक कॉलम हम इसमें सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पर क्या है, रोल, और अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम जो काम कर रहे हैं, सी हियर 102 और 103, हमारा रो कौन सा है, 102 और 103, और कॉलम हमारा कौन सा है, रोल और क्लास। ठीक है, रोल और क्लास। यहाँ पर इस पिक्चर में थोड़ा गलत हो गया है। ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ पर देखिए हमारा कौन कौन सा हो गया, लेट्स सी 102 and 103, and we are selecting roll and class like this। इस प्रकार से हम रोल और क्लास को हम सिर्फ सेलेक्ट करना चाहेंगे। ठीक है, नेम को भी सेलेक्ट करना चाहेंगे। अगर हम कोलोन डाल दिए हैं तो रोल से क्लास तक का आएगा। ठीक है, रोल से क्लास तक, बीच में नेम भी आ जा रहा है। ठीक है, तो दिस वी वांट टू सेलेक्ट। जो हम यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ हमारा स्टार्टिंग रो हमारा क्या है, दिस इज माय स्टार्टिंग रो, ये हो गया स्टार्टिंग और ये हो गया एंड, जिसको हम यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, फिर हमारा स्टार्टिंग कॉलम हो गया रोल से लेकर क्लास तक, रोल से लेकर क्लास तक। आई होप इट इज क्लियर, एंड दिस वी विल डू नाउ प्रैक्टिकली। ओके, let's try to learn it practically। okay, so let's learn practically। here we have got the Python shell, and now we will learn one by one। first we will see how to extract the particular, पहले particular column को हम कैसे select करते हैं। ठीक है, वो देखेंगे, particular column को हम कैसे करते हैं। यहाँ पर न्यू फाइल,
This is not visible. Wait here. ये देखो, यहाँ पर हम लोग लिए हैं, वी हैव इम्पोर्टेड pandas, और यहाँ pandas को इम्पोर्ट किए, और यहाँ पर वी हैव क्रिएटेड अ लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। ठीक है, डिक्शनरी बनाए। डिक्शनरी, पहला एक डिक्शनरी है स्टडी वन, दूसरा डिक्शनरी है स्टडी टू, तीसरा डिक्शनरी स्टडी थ्री यहाँ पर बनाए। फिर डिक्शनरी का लिस्ट क्रिएट की, और फिर लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज से हम यहाँ पर डेटा फ्रेम क्रिएट किए, और यहाँ पर पूरे डेटा फ्रेम को प्रिंट कर रहे हैं, और यहाँ पर हम डेटा फ्रेम के फिर सिर्फ रॉल को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ हम रॉल को प्रिंट कर रहे हैं। इसको सेव कर देंगे। इसको सेव करते हैं। सेव कर दिए। सेव करने के बाद इसको रन कराएंगे। एरर है, import pandas as सेव किए। ओ माय गॉड, नहीं हो पाएगा।